Assalamu alaikum dear students. Hope you guys are doing fine. Most probably it's our third lecture, and today we are going to discuss about the kinds of pronouns. Before going into the details about pronouns, let us have a review over what we have already done in our previous classes. Well, हमने पिछली क्लास में बच्चे ये सीखा था कि what is a pronoun. Pronoun is a word that we use instead of a noun to avoid repetition. I have already told you that अगर हमें ऐसा बोलना पड़े, let's suppose if we are discussing about Jamil, that Jamil is a very good student and Jamil's father is a doctor. Jamil belongs to a very good family. Jamil lives in Deir Ismail Khan. So the again and again repetition of the word Jamil makes the discourse ugly. Instead of saying Jamil again and again, why we should not use the words like Jamil is a very good student, his father is a doctor, he belongs to a very respectable family, they live in D.I. Khan. D.I. Khan is a very famous city which is situated on the river Indus, and so on and so forth. इस तरीके से हम जो भी नाउन लेके आते हैं उसको फ़ौरन ही रिप्लेस करते रहते हैं, so that our discourse should be decent, and it should be good looking, or it should seem good to our listeners. Okay, so students, today we have to discuss about the different kinds of pronouns. So first of all, we have to take personal pronoun. Personal pronoun. Acha, in order to understand any term, it is very important that first of all we should focus on its wordings. Personal pronouns, ज़ाती, personal का जैसे मानिए ज़ाती और प्रोनाउन, इसमें ज़मीर अपनी ज़ात की हद तक जो हम लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है जी, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाता है. और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस. आई, आर, us, these were the words that we have discussed in our previous lecture. We will not stay here, हमने आगे जाना है. We will take our start today from reflexive pronouns. Well, reflexive pronouns क्या होते हैं बेटा? Reflexive pronouns, a reflexive pronoun is so called when the action of the subject reflects upon itself. क्या होते हैं जी? A reflexive pronoun is so called when the action of the subject reflects upon itself. Well, dear students, जब हम कोई काम करते हैं और उस काम के करने के बाद जो एक्शन जो एक्शन है वो दोबारा जो है वो किस चीज़ की तरफ रिफ्लेक्स करता है, सब्जेक्ट ही की तरफ जो है ना रिफ्लेक्स करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. मसलन I have an example for you, and the example is I cut myself. I cut myself. Now look at this. I cut myself. Myself is reflecting to the subject. What is I? I is actually a subject, and myself is reflecting to this subject. So myself is a reflexive pronoun. इसी तरह बेटे you cut yourself. अब एक्शन क्या हो रहा है, योर सेल्फ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्स कर रहा है, तो ये क्या हो गया जनाब हमारे पास, माई सेल्फ, योर सेल्फ, एंड हर सेल्फ, itself, ourselves, yourselves.
whenever, जब भी हम कोई काम करें और हमारा जो है उस काम के बाद जो है माई सेल्फ, आर सेल्फ, जितने भी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं ये आते हों और वो रिफ्लेक्ट बैक करते हों सब्जेक्ट की तरफ, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलें जी आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है जी। वेल डियर स्टूडेंट, सो उम्मीद है कि आप लोग छुट्टियों में जो है वो टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और समझने की कोशिश में वक्त गुजार रहे होंगे। चलें जी, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस को देख लेते हैं बेटा। एम्फेटिक प्रोनाउंस, what are emphatic pronouns? When the compound personal pronouns like pronouns with the adjunct self or selves are used to lay emphasis on a particular point, they are called emphatic pronouns. अच्छा, क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वो ये कि आई कंप्लीटेड माई वर्क, my work myself। जब मैं एम्फेसिस करूंगा किसी चीज़ के करने के ऊपर, क्या करूंगा जी? एम्फेसिस मेरा जो है किसी चीज़ के करने की तरफ मैं जब करूंगा तो ये क्या कहलाएगा जी? एम्फेटिक। आई कंप्लीटेड द वर्क, सॉरी माई वर्क की बजाय आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ। तो इसमें क्या है बेटा, हमने एम्फेसिस जो है वो वापस जो है अपनी तरफ लिया है। तो जहां भी एम्फेसिस आएगा द डूअर ऑफ द एक्शन की तरफ, तो ये क्या कहलाएंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो। एम्फेटिक, emphatic is derived from the word emphasis. Whenever you have to emphasize the doer of the action within the same sentence, the pronoun coming at the end, or placing at the end, if it is referring towards the subject of the subject or the doer of the action, it will be called as emphatic pronoun। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अच्छा, एक दो और कर लेते हैं। He himself told me about it. Look, he himself told me about it. Now who is telling? He is the doer of action, and himself is putting some emphasis over what he has done. Okay, so this he is a pronoun and we call it emphatic pronoun because it is emphasizing the action of the subject। तो जितने भी pronouns होते हैं वो उसी sentence के अंदर अगर emphasize कर रहे हो अपने doer of the action को या अपने subject के ऊपर, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? emphatic pronouns कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? emphatic pronoun कहलाते हैं। Well, we ourselves saw the rainbow, दूसरा इसको भी गौर करो, we ourselves saw the rainbow, हमने खुद जो है ना, मतलब है कि वो देखा। रेनबो क्या होती है? बारिश के बाद जो निकलती है। ठीक है जी, हमने खुद जो है रेनबो को देखा। तो एम्फेसिस जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आर सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है, बिकॉज इट इज रिफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इज इट क्लियर अप टिल नाउ? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह क्लियर होगा। वेल, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है और वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, क्योंकि ये दोनों बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस देन? What is
the difference between रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में तो हमें क्लियर है ना कि जब पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ लग जाता है या सेल्फ लग जाता है तो क्या कहलाते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में भी हम तकरीबन यही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? Okay, so dear student, okay, a pronoun is a reflexive one if the action of the doer, subject, returns to itself, but if it is used to just emphasize the action of the subject, it is an emphatic pronoun. In the latter case, the compound pronoun with self or selves can be removed from the sentence without grievous loss to the meaning, but in the former case the pronoun with self or selves is indispensable. अच्छा जी, he cut himself हमारे पास था, look at the difference, he cut himself. Now what was that? It was reflexive pronoun. It was reflexive, and he himself cut the knot. ये क्या है? एम्फेटिक है. What is that? It is called एम्फेटिक. फर्क क्या आ रहा है बेटे? फर्क ये आ रहा है कि मैंने दोबारा से सुनो जी, मैंने कहा कि a pronoun is a reflexive one if the action of the doer returns to itself, but it is used to just emphasize the action of the subject. अगर सिर्फ जो है मतलब है कि pronoun सिर्फ जो है reflexive, a pronoun is a reflexive one if the action of the doer returns to itself, but it is used to just emphasize the action of the subject. अगर जो है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस है, ही कट हिमसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और जबकि अगर ये दूसरी सूरत हो, टू जस्ट एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन. लेकिन अगर सिर्फ एक्शन ही को एम्फसाइज करना हो तो फिर को क्या होता है जी? एम्फेटिक होता है. दोबारा से देखें, अगर हिमसेल्फ जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन को एम्फसाइज कर रहा है, उसको बार बार रिफ्लेक्स कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव जो है ना प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है. और अगर एम्फेसिस जो है ना वो एक्शन के ऊपर हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है. देखिए ना जी, ही कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काट दिया. नाउ हिमसेल्फ इज टेलिंग अस अबाउट ही विच इज सब्जेक्ट, and he himself cut the knot. Now himself is giving emphasis over the action. जब एक्शन के ऊपर एम्फेसिस होगा तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा. जब सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस होगा तो वो क्या होगा बेटे? क्या होगा? वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज वेरी सिंपल. when the emphasis is on the subject, it is known as reflexive pronoun. When the emphasis is on the action of the subject, it is known as emphatic pronoun. समझ आ गई? इसको दोबारा से अगर सुने, he cut himself, तो बात जो है वो दोबारा जा रही है ही की तरफ. himself जो है ना वो एम्फेसिस कर रहा है ही की तरफ, विच इज द सब्जेक्ट. तो इस वजह से हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट को रिफ्लेक्स कर रहा है. और ही हिमसेल्फ कट द नॉट, ठीक है जी. यहाँ पे एम्फेसिस जो है बेटा किस चीज के ऊपर आ रहा है?
द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये जो है ना क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं आगे जी। अच्छा, इसकी एक दो और मिसालें भी देख लेते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ बिट डिफरेंट यू नो टू हैव क्लास ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस एक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वी डू नॉट यू नो हैव एन interactive session here on this platform, but inshallah we will try our best to let you understand each and everything, you know. Now we have to take on indefinite pronouns. Indefinite pronouns, as I have said earlier कि बेटा जब भी आपने कोई नई टर्मिनोलॉजी सीखनी हो तो लर्निंग का पहला असूल जो है, यूनिवर्सल असूल है कि यू शुड फोकस ऑन द टाइटल। दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द इंटायर कॉन्सेप्ट। हम सेमेंटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो सेमेंटिक्स में यही कुछ दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि लफ्ज़ों के मायने क्या हैं। आप इनडेफिनेट के ऊपर गौर कर लें तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डेफिनेट मीन्स द थिंग्स अबाउट विच यू आर सर्टेन, जिसका आपको यकीन है। ओके, और वाज़े चीज़, उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो कोई वाज़े चीज़ होगी जो डेफिनेट होगी, और इनडेफिनेट गैर वाज़े। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। वेल, व्हेन आई से ही, शी, it, all these are the pronouns. Let's think about he. इसके पीछे लग जो investigate, who is he? You will find a name, कोई नाम आपको मिलेगा, he is Aslam. So this pronoun has a noun, original noun Aslam. she के पीछे लगे, investigate it. हाँ जी, कौन? सलमा। सलमा हमें मिल गया एंड के ऊपर के। इस शी का जो मतलब है, इसका ओरिजिनल नाउन जो है वो क्या है? सलमा है। इट के पीछे लगे तो हमें पता चला कि इट इज अबाउट द चेयर, इट इज अबाउट द चेयर। इनडेफिनेट क्या है? इनडेफिनेट वो प्रोनाउन है जिसके पीछे आप लगो समवन, लेट्स सपोज। अब इसके पीछे आप लगो तो आपके पास सवाल बाकी रह जाए, हु, कौन, समवन कौन। तो इनडेफिनेट से अंदाजा लगाओ ऐसे प्रोनाउंस जिनका आपको नाउन न मिल सके वो क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग ओनली इन जनरल वे, इट इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। लेट्स सपोज, डू यू नो एनीवन हियर? लेट्स से, डू यू नो एनीवन हियर? अच्छा, अब मेरे पास प्रोनाउन आ गया एनीवन, ये सवालिया निशान। अब मैं एनीवन को इन्वेस्टिगेट करूं, मुझे नहीं पता चलेगा कि ये किसकी बात हो रही है। तो लुक एट द वर्ड एज आई हैव टोल्ड यू, इनडेफिनेट, गैर वाज़े, गैर वाज़े। तो थीसिस स्टेटमेंट होती है बेटा, हर लफ्ज़ जो भी हम किसी टर्म्स को देखते हैं उसका जो इब्तदाइया होता है, अगर वो किसी उस फील्ड के किसी माहिर ने लिखा है तो उसको ऐसा उसने नाम दिया जिसके अंदर, उसके टाइटल के अंदर ही उसकी पूरी कहानी छुपी हुई होती है। तो इनडेफिनेट मीन्स अ नाउन, इनडेफिनेट मीन्स द प्रोनाउन जिसका, ऐसा प्रोनाउन जिसका हम नाउन ना ढूंढ सकते हो, हमें मिल ना सकता हो, वो क्या कहलाता है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये हैं कौन कौन से? ये anybody, anyone, and you know there are different, everybody and somebody, nobody, so on and so forth. चलें आगे चलें बच्चे। अब इसके बाद है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक्चुअली आई हैव टू फिनिश इट, सो दैट इज वाई थोड़ा सा जल्दी आपको भी महसूस होगी कि सर आज जो है ना इतना स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा बच्चों, अब क्या है? अब भी वही अप्रोच चाहिए थीसिस स्टेटमेंट की, डेमोन्स्ट्रेटिव। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट्स टाइटल। डेमोन्स्ट्रेटिव किसे बोलते हैं?
जब आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, जब आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हो, तो इट इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेशन। किसी चीज को आप जो है ना इशारा कर दो, डेमोन्स्ट्रेटिव जहन में आते ही लफ्ज़ ही कोई ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इशारे के मुतालिक बात हो रही है। किस चीज़ के मुतालिक बात हो रही है? इशारे के मुतालिक। द प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट और डायरेक्ट अस स्ट्रेट अवे टू द ऑब्जेक्ट, क्या है? दे रेफर टू और कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हों, इशारा देते हों, ये जो निशान है, ये अगर देखें ऐसे लफ्ज़ जो आपको इशारा दें कि दैट इज़ द थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट, ही इज़ द मैन वी वर डिस्कसिंग अबाउट, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी यूज टू लिव। तो यहाँ पे क्या है, जब इशारे के तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। मसलन दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। नाउ दिस इज सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन, मैं किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं, तो दिस जो है वो इंडिकेट कर रहा है मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरफ। सो दिस इज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां तक क्लियर हो गया है? अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो हम आगे जो है ना दूसरी चीजों को समझने की कोशिश कर। ये कौन कौन से हो सकते हैं बाय द वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर, and different, जिसमें भी इशारा पाया जाता हो, आप जो है ना उसको मतलब है कि इसमें ले सकते हैं। और ये बाज़ दफ़ा इन्हीं में से कुछ ऐसे भी होंगे जो डिफरेंटली बिहेव कर रहे होंगे, तो किसी दूसरी कैटेगरी में भी फॉल कर रहे होते होंगे, लेकिन इस चीज़ की आपने परवाह नहीं करनी है। आपने सिर्फ इस चीज़ को जहन में के अंदर रखना है कि इस सेंटेंस के अंदर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ये प्रोनाउन जो है कोई डेमोन्स्ट्रेटिव काम तो नहीं कर रहा है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दे रहा है, किसी चीज़ की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। अगर इशारा कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो आगे चलते हैं जी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं आमतौर के ऊपर। क्या कहते हैं बच्चे? इंट्रोगेटिव। ओके, सो आई थिंक सो फार सो गुड वाली सिचुएशन है। मैं इसका वो भी करता हूँ, आई एम गोना टेल यू अबाउट द समरी ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, एंड इंशाअल्लाह जैसे ही मैं इसको ख़त्म करूँगा मैं आप लोगों को दोबारा सारी चीज़ें जो है वो भी करवाऊँगा, रिपीट भी करवाऊँगा कि आज हमने क्या क्या जो है ना डिस्कस किया है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव भी कहते हैं एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके गाइस, सॉरी। वेल, जहां पे सवाल के तौर पे कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है, आई मीन लेट्स सपोज हु गोज देयर, वहां कौन जाता है। नाउ हु इज नॉट अ नाउन, ऑब्वियसली इसके पीछे एक नाउन मौजूद है, एंड वी नो एनीथिंग रिप्लेसिंग अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो हु गोज देयर सवाल पैदा कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज दिस हाउस, यस, हुज इज दिस हाउस, ये घर किसका है। नाउ यहाँ पे हुज जो है वो क्या कर रहा है? सवाल पैदा कर रहा है। हुज इज दिस हाउस, तो ये घर किसका है। यहाँ पे हुज क्या है जी? जो है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसी तरह की ये सारे व्हाट, हु, होम, विच, ठीक है,
which etc. ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। चलें जी, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे जाने से पहले ज़रा इस चीज़ को दोबारा से देख लें कि अभी तक जो है ना हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें हमने indefinite pronouns, reflexive pronoun, emphatic pronouns and demonstrative pronouns, interrogative pronouns, ये सारे जो है ना हमने डिस्कस किए हैं और इनकी डिटेल्स जो है वो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देख सकते हैं। इस टॉपिक को मैं जल्दी में इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते चले जाते हैं। ओके जी, तो relative pronouns, what are the relative pronouns? The pronoun which relates or refers to a preceding noun is called a relative pronoun. The preceding noun is called its antecedent. A relative pronoun performs two functions. On the one hand it is used instead of a noun, therefore it is a pronoun. On the other hand it connects two statements, therefore it also does the work of a conjunction. ठीक है जी, a relative pronoun पहली बात तो होता क्या है, it refers to a preceding noun. preceding तो समझते हो ना बच्चे, जो पहले जो है वो तज़किरा जिसका हो चुका हो, ऑलरेडी डिस्कस्ड नाउन, उसी सेंटेंस के अंदर कोई ऑलरेडी डिस्कस्ड नाउन है तो वो क्या है बेटा, प्रीसीडिंग है, प्रीसीडिंग नाउन है और ये उसकी तरफ इशारा करे और इसको हम जो है इसका जो प्रीसीडिंग नाउन है ये वाला इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। हम इसे क्या बोलते हैं जी, एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। अच्छा, वो ये कहता है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके दो फंक्शन है, इट हैज टू फंक्शन। अ रिलेटिव प्रोनाउन हैज टू फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज अ प्रोनाउन और दूसरा क्या है, इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन। ओके गाइस, यहां तक समझ आ गई है? कैसे करते हैं ये मैं बताता हूं बेटा, इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। देखिए जी, दैट इज द गर्ल, आई एम सॉरी मैं बोर्ड बहुत जल्दी जल्दी बनाता हूं और जल्दी जल्दी मुझे साफ भी करने पड़ते। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल देख ले। नंबर 1, दैट इज द गर्ल who won the prize. That is the girl who won the prize. ये वो लड़की है या वो लड़की है जिसने क्या किया था, जिसने जो है ना इनाम जीता था। तो हु जो है वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, गर्ल की तरफ। ठीक है, हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है, गर्ल की तरफ। और हमने पीछे क्या कहा था, हमने पीछे यह कहा था कि प्रीसीडिंग नाउन की तरफ इशारा करे। मसलन असलम is the one
who used to be a teacher. असलम वो बंदा है जो एक टीचर हुआ करता था। तो ये हु जो है किसकी तरफ रेफर कर रहा है? असलम की तरफ रेफर कर रहा है। असलम इज अ नाउन, वी नो प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। असलम इज अ प्रॉपर नाउन। चलें जी, असलम इज अ प्रॉपर नाउन और इसकी पोजीशन क्या है? प्रीसीडिंग पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है बेटे? प्रीसीडिंग पोजीशन है, पहले से ये मौजूद है। अब दूसरी बात को समझो, वो जो कह रहा था एंटीसीडेंट, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है बिकॉज इट इज रेफरिंग बैक टू अ प्रॉपर नाउन और नाउन एंड दिस असलम इज एंटीसीडेंट। ये असलम क्या है? एंटीसीडेंट है। अच्छा, मीनवाइल एक और काम भी तो ये कर रहा है ना। असलम इज द वन हु यूज्ड टू बी अ टीचर। अच्छा, अब इसकी एक और एग्जांपल भी हम देखेंगे जिसके अंदर हमें ये महसूस हो जाए या ये हमें पता चल जाए कि ये जो है वो कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। किस चीज़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है? कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओके गाइस, सो उम्मीद है कि आपको इतने तक बिल्कुल क्लियर समझ आ चुकी होगी आज जितने भी हमने प्रोनाउंस डिस्कस किए हैं। एंड इंशाल्लाह वी विल कम अप विद न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टॉपिक टुमारो इंशाल्लाह। वेल, इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें। असलम इज द वन who got injured in a car accident. असलम वो बंदा है who got injured in a car accident। तो यहाँ पे who जो है क्या कर रहा है? कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, मिला भी रहा है दो क्लॉजेस को, और जो है वो किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, और जो है वो प्रीसीडिंग नाउन को भी जो है ना मतलब है कि शो कर रहा है। प्रीसीडिंग नाउन का नहीं भूलना है। प्रीसीडिंग नाउन बेटे क्या होता है? एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं। दिस इज नोन एज एंटीसीडेंट। और जो इसको रेफर बैक करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाता है। एंड सम टाइम इट वर्क्स एज conjunction also. That's all from me for today, my dear students. I can hope that you guys will work hard at your homes. Inshallah will be we'll be trying hard to meet the requirements of our course, and I can hope कि आप लोग जो है ना हमारी एफर्ट को देखेंगे, समझेंगे और घर के अंदर रह के अपने वक्त को कीमती बनाएंगे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।